Hi guys, I hope you all are safe and well given the current times. In the previous videos, we learned how to solve simultaneous equations, but I also got to heard from some of you that you want to understand the basics of this chapter. So here I am with this first part of the chapter, and in this part we are going to talk about very basics of this chapter, like basic like algebraic expressions, algebraic equations, and like more basic than that, constant variables, coefficients, terms, everything else. So, okay, so let's just start the chapter part here. So very basic in this chapter, so basically linear equations in two variables. So in this chapter we are supposed to learn like algebraic expression, algebraic equation. This one we have learned before, so but I'm gonna recall all that thing, and it is going to be useful for ninth graders also who have this chapter, and we are going to see how to solve simultaneous equations. So this one we already have covered in part 5, part 6 and part 7, and we have covered like elimination method, substitution method. Cross multiplication is for CBSE, but I can do one video for that. And something new we have in Maharashtra board is like determinant and Cramer's rule. Okay, this is way Cramer's rule actually is related to like similar to cross multiplication method only, and we are going to cover geographical method. Okay, so let's start the chapter. First let's start with the very basic. If you remember, when I write linear equations in two variables, so when I say linear, what does it mean? Basically, if I write an equation here, x plus y equal to 5, so when I write just simply x plus y equal to 5, so here I say the power of x as 1, power of y as 1. तो यहाँ पे पावर 1 होने की वजह से क्या होता है कि इनका जो ग्राफ अब जब हम बनाते हैं ना, तो एक ये स्ट्रेट लाइन आता है, एक लीनियर आता है, लाइन, स्ट्रेट लाइन. इसीलिए हम इन इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं. और यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे x and y, that's why they are called two variables. Okay, linear equations in two variables. When I use just one variable, suppose like 2x equal to 5, so here you can see only x is the variable, so this will be called as linear equation in one variable. So in ninth we have linear equation in one variable, and 10th we have linear equations in two variables. This video is going to be useful for ninth and 10th graders both. So just like just focus here and just be interested. It is going to be very interesting. Okay, let's start then. So constant. So fixed quantities are called constant here. If I look at this equation, यहाँ पे 5 को I'm gonna say constant because 5 का value is not going to be changed. 5 ही रहेगा. Okay, but when I take x and y, तो I can put value of x as like कि 1 भी put कर सकते हैं, 2 भी put कर सकते हैं, 3, 4, any value, right? Similarly for y का value भी हम 1, 2, 3 any value we can put, right? Got it? But 5 is going to be the same. It is not going to be the change. So that's why it is called as constant. When I say variables, quantities that are not fixed or keep changing. Similarly like x and y. यहाँ पे x का वैल्यू 1, 2, 3 और -1, -2 और like any like 100 or 1000, it could be any number. तो यहाँ पे x का वैल्यू कैन बी चेंज्ड एंड y का वैल्यू कैन ऑल्सो बी चेंज. हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं इन्हें, इसलिए हम इन्हें वेरिएबल्स बोलते हैं. एंड जनरली we take variables like letters from A to Z, something like that. So we take हम कोई भी सिंबल भी यूज कर सकते हैं, लाइक रेक्टेंगल का सिंबल या फिर सर्कल या फिर ऐसा. बट दिक्कत क्या होगा अगर ये सिंबल्स यूज करें ना, तो इन्हें मैनेज करने में बहुत दिक्कत जाएगा आपको, लाइक थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगा आपको लाइक जस्ट टू रिमेंबर देम कि आपको अच्छा ये सिंबल का वैल्यू ये था, ये सिंबल का मतलब ये था, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है. दैट्स व्हाई लेटर्स A to Z आर इजियर टू यूज एज वेरिएबल्स टू शो वेरिएबल्स. नाउ व्हेन इट कम्स टू कोफिशिएंट, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक important concept है between constant and coefficient. Okay, just give me a second. I'll just rub these parts so we can have more space. Okay, once again. या तो जब हम कोफिशिएंट्स की बात करते हैं तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट में एक थोड़ा सा, बट कोफिशिएंट क्या होता है ना कि कांस्टेंट ही है, इट्स जस्ट द कांस्टेंट विथ साइन. व्हेन आई राइट सपोज x इक्वल टू 5 हमारा कांस्टेंट है. कोफिशिएंट क्या है? जो x के पहले का फैक्टर होगा. x के पहले का फैक्टर होना मतलब जो x के मल्टीप्लाई में होगा. अब यहाँ पे के x के मल्टीप्लाई में क्या है? कुछ नहीं, आपको तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट हम मैं क्या कंसीडर कर सकते हैं? 1, राइट? बिकॉज 1 into x is x only. तो 1 को वी कैन कंसीडर द फैक्टर ऑफ x हियर. 1
विथ साइन, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो वी कंसीडर ऑलवेज कंसीडर एज प्लस, राइट। तो 1 विथ साइन विल बी कंसीडर एज यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x। तो पहले न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द वेरिएबल, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। दिस ओनली नंबर, अ न्यूमेरिकल नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ही है कोफिशिएंट जब वो साइन के साथ कंसिडर किया जाता है और एक फैक्टर के साथ कंसिडर किया जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें 2x है यहाँ पे, तो 2x कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स, लाइक 2 एज अ कॉन्स्टेंट एंड इंटू एक्स, 2 हियर प्लस 2, बेसिकली साइन के साथ अगर देखें तो प्लस 2, यहाँ पे इसका x का न्यूमेरिकल फैक्टर कहलाएगा, और इस प्लस 2 को x का ही हम क्या बोल देंगे, कोफिशिएंट बोल देंगे, और इस पूरे को बेसिकली कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ओके, यहाँ पे इसे ही हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। प्रोडक्ट टर्म क्या होता है, बेसिकली जब हम किसी वेरिएबल और कांस्टेंट को साथ में लिख देते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे यही क्या बन जाएगा, टर्म, और प्लस 2 यहाँ पे क्या कहलाएगा, x का कोफिशिएंट। तो याद रखना है x के पहले कुछ भी लिखा हो प्लस विद साइन, तो वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है, उसका न्यूमेरिकल फैक्टर होता है, इसलिए उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड। जब हम यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल्स और कोफिशिएंट से, तो हम यहाँ पे टर्म्स बनाते हैं, और टर्म्स जब आते हैं तो टर्म्स को ही हम क्या करते हैं, जब अरेंज करते हैं तो हम उनको किस फॉर्म में बोल देते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हम उन्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डिफाइन करूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, तो हम क्या, आई कैन से एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज सम ऑफ इट्स टर्म्स, और बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड नंबर, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। व्हाई एम आई सेइंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे कि कांस्टेंट और जब वेरिएबल को साथ में लिखते हैं तो उसे हम टर्म्स बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, ओके, विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, so you can say fundamental operators also। क्या क्या होते हैं, प्लस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन is known as an algebraic expression। जब हम टर्म्स को इन साइंस के साथ, यहाँ पे ऑपरेटर्स के साथ जब हम कंबाइन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोल देते हैं हम उन्हें। बस इतना ही सिंपल सा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2x प्लस 3 है, तो इफ आई राइट, मैं थोड़ा अलग से लिखते हैं इसे, 2x प्लस 3 में यहाँ पे अगर मुझे थोड़ा सा डिफाइन करना हो और तरीके से, तो यहाँ पे इसे मैं एक टर्म बोलूँगा, इसे भी मैं एक टर्म बोलेंगे। यहाँ पे टर्म आपको लगेगा कि ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट, यस इट इज अ कांस्टेंट आल्सो, बट यहाँ पे मैं x टू द पावर 0 भी तो मान सकता हूँ ना। x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, आप सबको पता होगा क्या होती है, 1 होती है। तो 3 इंटू 1 तो 3 ही रहेगा, तो आई कैन राइट इट लाइक दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे एक टर्म कहलाएगा, ये एक टर्म कहलाएगा। यहाँ पे x हमारा वेरिएबल कहलाएगा, राइट, x हमारा वेरिएबल हो जाएगा, और 2 हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट कहलाएगा। ये x के साथ में, याद रखना ये x के साथ में है, तो इसीलिए हम इसे कोफिशिएंट बोलेंगे। और ये 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, और या फिर इसका भी x0 का कोफिशिएंट बोल सकते हैं, x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट बोल सकते हैं, ऐसा, ठीक है, गॉट इट, इजी है। सिमिलरली लाइक 5 प्लस एक्स, टर्म प्लस टर्म, यहाँ पे देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, इसीलिए हम इन्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली मोर एग्जांपल्स, 1 second, so a few more examples here, y plus 4 similarly, and 5 by 3 plus 2y, okay, got it। now algebraic expressions becomes algebraic equation। और वो कब होता है, तो it is going to be very easy, okay। 2 टाइप का होता है, न्यूमेरिकल इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन। होता क्या है कि जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को, 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ले लें, ओके, सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल ले लूँ, x प्लस y, आपने ये एग्जांपल तो बहुत देखा होगा, बहुत इजी है, राइट, ये हमेशा देखने को मिलता है ना। तो एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज्यूम करो और इसे यहाँ पे एक एज्यूम करो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके। जब इन दोनों को हम बोले ना कि ये इक्वल है, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हम इक्वेट कर रहे हैं दोनों को, किससे, इक्वल ऑपरेटर से, यहाँ पे इक्वल साइन से हम इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम ऐसा बोले कि x प्लस वाई का वैल्यू 2 होने वाला है, 2 होने वाला है, तो ये एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाता है। तो एक्सप्रेशंस को इक्वल साइन के साथ इक्वेट करना, ओके, बोथ, सो एल्जेब्रिक इक्वेशन। मैं अगर फॉर्मल डेफिनेशन बोलूँ, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट 2 expressions आर इक्वल। इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट 2 expressions आर इक्वल, ओके। न्यूमेरिकल इक्वेशन है, अगर यहाँ पे आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखो तो बहुत ईजी लगेगा। देखो 2 प्लस 3 आपको पता है क्या होता है, और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ 4 प्लस 1 प्लस 4, इसका वैल्यू भी 5 है,
इसका वैल्यू भी 5 है। तो सी यहाँ पे बोथ साइड्स आर इक्वल, राइट? दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड्स आर इक्वल। तो यही हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाता है जब वो एक परमानेंटली एक ट्रुथ मिल रहा है हमें कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों साइड इक्वल हैं। अगर हम ये इक्वल साइन से इन्हें डिफाइन करें तो दोनों साइड्स इक्वल है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इस साइड की वैल्यू एक पता है, सपोज इस इक्वेशन में अगर x की वैल्यू पता है, y की नहीं पता है, और हमें ये साइड का पता है, राइट हैंड साइड पता है क्या है, तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे कहने का मतलब है एल्जेब्रिक इक्वेशन का कि ये दो बोथ द साइड्स बैलेंस होंगे, ये बैलेंस्ड होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो अगर यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो हम ट्रांसफर करके इस साइड फाइंड कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड algebraic equation. You can see here more examples. 3m plus 7 equal to 10. ये questions equations हम हमेशा examples में देखते हैं, right? Okay. So the final, let me just get to know from you if you have understood or not. And for that I have here algebraic equation एक लिखा हुआ है यहाँ पे. And just see this whether you can understand it or not. 2x plus 3 equal to 16. 2x plus 3 equal to 16. आपको identify करना है क्या क्या है यहाँ पे। 2x क्या है, इसमें x वेरिएबल है, 2 कोफिशिएंट है, और टुगेदर दे विल बी कॉल्ड एज टर्म। प्लस 3 एक कांस्टेंट है, बट यहाँ पे प्लस के साइन के साथ यहाँ पे इस टर्म से एडेड है, और ये भी एक टर्म है इसलिए टर्म। इक्वलिटी साइन, ये देखो ऑपरेटर कहलाएगा, इक्वलिटी इक्वल ऑपरेट, और यहाँ पे इक्वल टू 16 ये भी एक टर्म है और एक ये कांस्टेंट है। ओके, ये एक्सप्रेशन एक साइड का हो गया, इक्वल साइन से ये देखो कंबाइन किया गया, और एक्सप्रेशन दूसरे साइड का हो गया। बोथ द एक्सप्रेशंस आर इक्वल, इसलिए हम उन्हें क्या बोलेंगे, एल्जेब्रिक इक्वेशन। दैट्स इट, इट इज इजियर, राइट? लेट्स सॉल्व अ फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड सी हाउ वेदर वी हैव अंडरस्टूड और नॉट। ओके ओके, अ स्मॉल एक्सरसाइज। ओके, यहाँ पे आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि न्यूमेरिकल इक्वेशन है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 9 plus 5 equal to 14. Take your time, just take 5 seconds. Okay, so what do you think? It is a numerical equation. क्यों है? Because यहाँ पे only numbers are used. Simple है, numbers use हैं तो only numerical value है, इसलिए numerical equation होगा। 5m minus 2. What do you think? What numerical equation or algebraic expression? Take your time. Okay, m is a variable, right? तो यहाँ पे वेरिएबल आता है तो क्या बन जाएगा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरी गुड। ओके, लेट्स जस्ट सॉल्व दिस वन आल्सो। h plus 3 equal to 5. वेरी गुड, दिस इज वेरी क्विक। ओके, सो दिस इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज यहाँ पे h इज अ वेरिएबल। 6k equal to 2. नाइस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज k is a variable. 6 into 3 equal to 18. Very good. Numerical equation because all three are न्यूमेरिकल वैल्यूज। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, ये देखो 6 into 3 करेंगे तो 18 ही आएगा, तो बोथ द साइड्स हमारे इक्वल होंगे, इसलिए इन्हें इक्वेशन कहा जाता है। गॉट इट? नाउ हाउ डू वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन? हमने अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा, राइट? बट अगर उसका बेसिक्स कहाँ से आता है, अगर हम समझना चाहें बेसिक्स कहाँ से आता है, तो क्या होता है, एक सिंपल इक्वेशन में लेके देखते हैं। मैंने अभी प्रीवियस इक्वेशन में कहा कि अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 2 लेता हूँ, यहाँ पे मुझे x का वैल्यू पता है, y का नहीं पता है, तो मैं हाउ कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ y बाय सॉल्विंग इट, राइट? अगर मैं एज्यूम करूँ, सपोज मुझे यहाँ पे 1 पता है x का वैल्यू, y का वी डोंट नो, देन व्हाट विल यू डू? we will transfer 1 that side, you will get 2 minus 1 अपोजिट साइन आता, तो ये y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये जो मिसिंग वैल्यू है ना, ये कहलाता हमारा सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ये y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा क्योंकि x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 मिल गया, तो 2 है, इस साइड 2 है, तो ये देखो सेटिस्फाई कर रहा है ना, बोथ द साइड्स आर इक्वल। तो सॉरी, ये वैल्यू फाइंड करना हमें। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व अ फ्यू एग्जांपल्स। 2k plus 3 equal to 6 है, यहाँ पे इक्वेशन हमें दिया हुआ है, और k equal to 5 इज अ वैल्यू गिवन। हमें प्रूव करना है कि क्या ये k equal to 5 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, नहीं, क्या ये k equal to 5 सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बन सकता है या नहीं। ओके ओके, लेट्स सॉल्व देन। सो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट कितना है, 2k plus 3 है, राइट हैंड साइड हमारा 6 है। यहाँ पे सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बिकॉज हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, ये वैल्यू पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड 2k plus 3 हमने लिखा, k की वैल्यू क्या है 5, तो वी हैव पुट हियर k equal to 5, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। बॉर्डर मास रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट ओपन करो, उसे सॉल्व करो, उसके अंदर का जो भी है वैल्यूज उन्हें सॉल्व करो, देन यू मूव टू द अदर पार्ट।
सो 2 into 5 will give me 10, ब्रैकेट ओपन किया 10 आ जाएगा, प्लस साइन यहाँ पे था तो +3, 10 + 3 we know that 13. Here left hand side we are getting as 13, राइट हैंड साइड वॉज गिवन एज 6. आपको अभी अभी हमने पढ़ा है अलजेब्रिक इक्वेशन में दोनों साइड क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, दोनों साइड का वैल्यू सेम होना चाहिए. इसीलिए ये जो k का वैल्यू 5 है ये हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए k = क्या होगा हमारा सोल्यूशन, इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं होगा. इजी है राइट, वेरी इजी. सो done for today for this video, and in the next video we'll learn how to find the solution of the other equations as well. So just keep yourself engaged in this, it is going to be very easy and very interesting. Okay, thank you so much guys.